Hi, ma'am. How are you? I'm good. How are you? I'm doing well, thank you. Uh, second. Is it just me? The voice is audible? Is it just me? Yeah. Shubhi, are we going live? Yes. Yes. Okay. So good evening, everyone. India time से हमारा evening हो गया है. So today we wanted to bring in some international perspectives to our discussion. People the Resilience Lab is working at the grassroots level. We are working on basically we are working on reviving a river. There's a very small river which we are trying to revive, but to work on that particular river we are touching various aspects, be it ecology, be it the social aspects, and be it the economical aspects. So there are many aspects that we are touching, and why we wanted to bring in an international perspective is because Dr. Anupam Anand has been working with the World Bank, and he has been evaluating different programs across the world. And I'm sure your work would be touching the sustainable development goals. It must be talking about the Paris Agreement also, and somewhere I'm not very sure, but there was the third international framework which was signed by India and most of the countries. The third one was the Sendai framework, which aimed at resilience basically. So somewhere these three frameworks have certain common goals where we are trying to build the resilience of people, where we are trying to bring development on track, and especially also in those areas which has been affected by the influence of the climate, influence of the disasters, and how they have been negatively impacting different indicators, the development the indicators. And then of course the sustainable development goals in itself has been covering a vast range of indicators, development indicators. So when we talk about our work, people's work has been touching various sustainable development goals also. The thing is, we are not looking at the goals and working. What we are doing is, when we work, we find that our work has been touching various different indicators. And even though small, even though it is just covering one or two or three districts of Bihar, also in a very small pocket, somewhere I think even these micro initiatives are very important in the larger global goals, to achieve those larger global goals, because the whole idea is not to leave anyone behind. So here we also wanted to take some advice from Dr. Anupam Anand, and also Mr. Amitabh Thakur, who has been working on, he has been working with startups, he has been working with various banks and all, and he has a very clear idea about various economics, and especially when it comes to sustainability and the social goals. He has first-hand experience on that, because in Bhagalpur itself, he has a small concern which is called Project Gamcha, which is working on silk handloom products, which is completely sustainable in nature. One, because it is taking care of the environment. It is second, it is taking care of the workers, because nowhere in Bhagalpur you will find the workers, the handloom workers, being paid so well, the way Project Gamcha pays. And the third thing is, because the dignity of labor is being respected there. And the third thing is, the products that come out of Project Gamcha has a very niche clientele. So again, people would like to learn from Amitabh Thakur ji also, that how do we do that? How do we upscale that? How people can use
these learnings to upscale these initiatives in Bhagalpur and especially in our watershed. How to bring about sustainability by taking into account the ecology, the community needs, and thirdly the economics as well. So these are I'll close with these words, and I would invite Dr. Anupam Anand to share his experiences and how and what he can advise our small organizations such as people how to go about it from both his learnings of failures as well as successes that he has seen across the world. Dr. Anupam Anand. Okay, thank you, Rani ma'am, for the invitation. It's a pleasure to be here. And I have two quick questions on the logistics. How much time do we have? And preferred language? I would prefer that you use both English and Hindi, whatever you are comfortable with, but you also have to take into account that we would like people from Bhagalpur who are the viewers of this, who would like to understand what you are trying to say. That is one. And the second thing is time until 6:30, along with discussion, you have all the time to yourself. Okay, thank you very much. Yeah. So I'll just share my screen if... You can, yeah. Yes, you can share. Right. I hope you can see my screen. All right. So today I'm going to talk about, पहले मैं जो है ये बात करूंगा कि जो ग्लोबल स्केल पे एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट के लिए कैसे कमिटमेंट्स होते हैं, लोग जो देश हैं वो कैसे एक साथ मिलके कुछ निर्णय लेते हैं, महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं कि कौन सा जो पर्यावरण की परेशानी जो है सबसे बड़ी है और उसको कैसे हम विश्व स्तर पर उससे कैसे हम निपटेंगे। तो उसके लिए करीब बहुत सारे कन्वेंशंस हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल कन्वेंशंस उनको बोलते हैं, और ये सारे यूएन के अंदर आते हैं। तो जो 5 मेन यूएन कन्वेंशंस हैं एनवायरनमेंट पे, वो यहाँ पे हैं आपके स्क्रीन पे। पहले आपको दिखेगा यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये क्लाइमेट चेंज जो अभी जलवायु परिवर्तन हो रहा है उस पे फोकस्ड है ये। और उसी तरह कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डिवर्सिटी, जो जैव विविधता है, ये कन्वेंशन उस पे काम करती है। उसके अलावा आज एक्चुअली बहुत महत्वपूर्ण दिन है और मैं बताना चाहूँगा कि आज डेजर्टिफिकेशन और ड्राई लैंड्स का दिन है और पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। और इसके लिए जो कन्वेंशन है वो कन्वेंशन है कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। और उसके अलावा जो 2 और महत्वपूर्ण कन्वेंशन है, एक है स्टॉकहोम कन्वेंशन और ये रॉटरडम कन्वेंशन के साथ काम करते हैं। ये केमिकल एंड वेस्ट, जो जितना आपका प्रदूषण हो रहा है, अब इसमें प्लास्टिक्स भी डाल दिया है, तो प्लास्टिक भी इसका पार्ट हो गया है। तो ये जितने तरह के प्रदूषण है और अलग अलग तरीके के प्रदूषण है, जैसे स्टॉकहोम है वो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स पे काम करती है, जैसे डीडीटी हो गया और इस टाइप के जो पॉल्यूटेंट्स है। और अभी जो सबसे नया कन्वेंशन आया है एनवायरनमेंट में, उसका नाम है मिनामाटा। और मिनामाटा जो है वो मर्क्यूरी पे फोकस करती है। तो ये 5 जो महत्वपूर्ण कन्वेंशन है, इसमें से जो 3 कन्वेंशन हैं जिनको रियो सिस्टर्स बोला जाता है, एक तो क्लाइमेट चेंज पे है, दूसरा बायोडाइवर्सिटी, और तीसरा जो है वो है लैंड डिग्रेडेशन। तो ये रियो जो एक शिखर सम्मेलन हुआ था 1992 में, ये अभी तक का सबसे महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन इसको माना जाता है कि पहली बार जो सारे देश हैं एक साथ आए और उनको लगा कि हमको कुछ करना चाहिए पर्यावरण के लिए। और उस समय क्या हुआ कि ये 3 जो कन्वेंशंस हैं ये उभर के आए, और इंडिया भी इनका सिग्नेटरी है, और सभी इन 5 का सिग्नेटरी है इंडिया, हमारा जो देश है।
जब आप सिग्नेटरी हो जाते हैं, उसको रेटिफाई कर देते हैं कन्वेंशन को, तो उसका मतलब है कि आप जो कन्वेंशन में जो बातें हैं आप उनको मानेंगे और आप उसमें एक पार्टी होते हैं। तो इंडिया जैसे एक पार्टी है और ये इन कन्वेंशन को पार्टीज ही चलाते हैं। तो जैसे हमारा पार्लियामेंट है, जहाँ पे अलग अलग जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं वो आके डिसीजन लेते हैं, इसी तरह आप इसको एक पार्लियामेंट की तरह समझ सकते हैं, जहाँ पे अलग अलग देश, उनके पास राइट्स है, वोटिंग राइट्स है, वो हर 2 साल पे मिलते हैं और कुछ डिसीजन लेते हैं कि भाई अब आगे इसको कैसे चलाया जाए, अगले 10 सालों का हमारा क्या प्रोग्राम हो, अगले 20 साल का क्या प्रोग्राम हो। तो इस तरीके से सभी उस पर वोट देते हैं और उस पर डिस्कशन होता है और ऐसे ये कन्वेंशन आगे काम करता है। अधिकतर जो ये सारे कन्वेंशन हैं ये नॉन बाइंडिंग होते हैं। इसका मतलब ये है कि आप कुछ वहां वादा कर सकते हैं कि ठीक है हम ऐसा करेंगे, लेकिन अगर आप नहीं करते हैं तो उसके लिए कोई बहुत पनिशमेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कुछ फाइन हो जाएगा या आपको कहीं जेल भेज दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो अधिकतर जो कन्वेंशन हैं इस तरीके के, वो नॉन बाइंडिंग है। कुछ ऐसे कन्वेंशन हैं जो बाइंडिंग है। बाइंडिंग का मतलब लीगली आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आप सैंक्शन आपको हो सकता है। जैसे साइटिस है जो एनिमल ट्रैफिकिंग में से डील करता है, तो वहां पे है कि अगर आपने आप लगे बाघ और शेर बेचने अपने देश में, तो आपको सैंक्शन हो सकता है। लेकिन ये अधिकतर जो है एस्पिरेशनल होते हैं कि हम वादा करते हैं कि हम अपना जो है पॉल्यूशन कम कर लेंगे और ये कम कर लेंगे। उसी तरह से रॉटरडैम है और स्टॉकहोम है, इसमें कुछ केमिकल्स बैन है, तो वो उसको लेके कुछ सैंक्शंस हो सकते हैं अगर आप वो केमिकल को बना रहे हैं या और बांट रहे हैं। लेकिन मूलभूत तरीके से ऐसा है कि इसमें कोई सैंक्शन नहीं है। तो ये जब 1992 में ये सारे जब ये शिखर सम्मेलन हो रहा था, तो वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, उन्होंने एक वर्ल्ड बैंक के अंदर एक यूनिट बनाया और कहा कि हम केवल एनवायरमेंट पे काम करेंगे, केवल हम पर्यावरण पे काम करेंगे। और ये 1992 की बात है, जब वर्ल्ड बैंक बहुत बड़ी बड़ी सड़कें, बड़े बड़े डैम्स बना रहा था। तो कई लोगों को लगा कि भाई वर्ल्ड बैंक और एनवायरमेंट, ये सुन के थोड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक तो बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड कर रहा है। और तो उस समय ये डिसाइड हुआ कि वर्ल्ड बैंक के अंदर ये यूनिट रहेगा, तो जिसका नाम ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी है। तो ये यूनिट जो है, जो बैंक के अंदर स्थापित हुआ था, उस टाइम ये डिसाइड हुआ कि ये जो है ये बैंक के अंदर रहेगा, लेकिन बैंक से इंडिपेंडेंट रहेगा फंक्शनली। इसका मतलब ये है कि ये बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं या जो बैंक के सीनियर लीडरशिप है, उनको ये रिपोर्ट नहीं करेगा, ये सीधे काउंसिल को करेगा। तो काउंसिल क्या होता है कि उसमें रिप्रेजेंटेटिव होते हैं अलग अलग देश को जो नॉमिनेटेड होते हैं। अधिकतर या तो देश के कोई मंत्री होते हैं या कोई बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट होते हैं जो आके साल में 2 बार मिलते हैं और डिसीजन लिया जाता है वहां पे। तो ये जो है ये हुआ कि बैंक के अंदर रहेगा तो, लेकिन ये फंक्शनली इंडिपेंडेंट होगा। और ये जो संस्था है ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, ये क्या करेगी, ये फाइनेंशियल मैकेनिज्म होगी। मतलब इन कन्वेंशंस को पैसे चाहिए काम करने के लिए, या इन कन्वेंशंस का काम बढ़ाने के लिए देशों को पैसा चाहिए। मान लीजिए भारत चाह रहा है कि हम कुछ एरिया को प्रोटेक्टेड एरिया बना दें, या कोई और देश है कीनिया चाह रहा है कि प्रोटेक्टेड एरिया बना दें, तो उनको सपोर्ट चाहिए उसके लिए। पोटेंशियल होता है अधिकतर, लेकिन सपोर्ट कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी होता है कि वहाँ के ऑफिसर्स को ट्रेन किया जाए, वहाँ के नियम कानून में कुछ अगर परिवर्तन करने हो तो उसके लिए ट्रेनिंग दी जाए। और जो भी ग्लोबल स्तर पे जो भी एक्सपीरियंस है उसको शेयर करना हो, तो उसके लिए भी आपको फिनेंसेस चाहिए होते हैं। तो इसका जो मेन काम है ये है कि ये फाइनेंशियल मैकेनिज्म है कन्वेंशंस के लिए। तो जैसे भारत है, तो भारत सीबीडी या यूएनसीसीडी का सिग्नेटरी है। तो अब क्या करते हैं भारत की जो सरकार है वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज के साथ। तो एक बात और मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि जैसे ये जो फाइनेंसेस अवेलेबल होते हैं, ये जैसे किसी एक संस्था को नहीं होते हैं, ये सीधे जो देश हैं, हर देश जो है उस हर 4 साल में हर देश के लिए कुछ एक फार्मूला है जिसके जरिए
आवंटन होता है। तो जैसे भारत है, तो 4 साल में हमको पता है कि भारत का इतना कोटा है, इतने पैसे हैं भारत को, जिससे वो इन 5 कन्वेंशंस से जुड़े हुए काम भारत में किए जा सकते हैं। तो इसको एक इंटरमीडिएटरी की तरह देखा जा सकता है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज को, जो 18 हैं अभी जेफ के। तो जेफ जो है वो अपना खुद का जैसे प्रोजेक्ट्स हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं करती है, वो 18 अभी एजेंसीज हैं उनके द्वारा करती है। ये जो एजेंसीज हैं इसमें अधिकतर जो हैं वो यूएन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा, यूएनडीपी है, यूएन एनवायरनमेंट है, उसी तरह एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जो है वर्ल्ड बैंक है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। तो ये सरकार के साथ मिलके प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये एक तरह का स्ट्रक्चर है। तो एक मैं ओवरव्यू देना चाह रहा था, क्योंकि बहुत मुझे भी जब मैं शुरू में आया तो मुझे बहुत समझने में मुश्किल हुई और समय लगा कि कैसे करता है। तो मैं चाह रहा था कि ये जो अपॉर्चुनिटी है लेके आपको बताऊं कि ये स्ट्रक्चर क्या है। तो आपको ऐसा दिख रहा है ये स्ट्रक्चर है यहाँ पे, और एक गाइडेंस मैकेनिज्म है, एक ऑपरेशन मैकेनिज्म है, जो ऑपरेशन है जो एग्जीक्यूट करता है सारे काम को, और एक्शन है जो ग्राउंड पे कैसे काम होता है उसको उसको जो करते हैं उसके लिए एक्शन है। तो आप ये देखेंगे कि जो हाईएस्ट बॉडी है यहाँ जो गाइड करती है असेंबली बोलते हैं, और यहाँ कन्वेंशन हैं। अगर आप देख पाए तो जैसे ये सारे कन्वेंशन हो गए, और असेंबली है हर 4 साल में मिलती है, और ये जेफ काउंसिल है। तो काउंसिल जो है ये हाईएस्ट बॉडी है एक तरह से, जहाँ पे साल में 2 बार सारे प्रोजेक्ट्स जाते हैं, उनका रिव्यू होता है, उनको पास किया जाता है, सारे महत्वपूर्ण जो निर्णय हैं यहाँ लिए जाते हैं। उसी तरह एक साइंटिफिक एंड टेक्निकल पैनल भी है, एडवाइजरी पैनल, जो विज्ञान से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जैसे आपका कोई प्रोजेक्ट आया वो हो सकता है कि नहीं, वैज्ञानिक स्तर पे वो सही है कि नहीं, या उसमें कुछ ऐसा है जो वैज्ञानिक दृष्टि से सही नहीं है, उसको किया नहीं जा सकता, तो उस पे ये सलाह देते हैं। और उसी तरह एक इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफिस है। तो ये इंडिपेंडेंट है क्योंकि ये सीधे काउंसिल को रिपोर्ट करती है। तो यहाँ ये इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफिस का ये रोल होता है कि ये इवैल्यूएट करती है। तो इसमें जितने प्रोजेक्ट्स हैं या प्रोग्राम्स होते हैं, या जो स्ट्रैटेजी है, इन सभी का ये जो है मूल्यांकन करती है। और यहाँ पे मैं काम करता हूँ, तो मेरा काम जो है वो मूल्यांकन का है और इवैल्यूएशन का है। और उसके अलावा एक सेक्रेटेरिएट है जो जो डेली बेसिस पे जो भी प्रोजेक्ट्स आते हैं उनका रिव्यू, देशों को कैसे मदद करनी है, एजेंसीज को कैसे मदद करनी है। और एक ट्रस्टी है, तो वर्ल्ड बैंक यहाँ ट्रस्टी है। ट्रस्टी वो है जहाँ पे पैसे रखे हुए होते हैं, और तो वर्ल्ड बैंक जो है वो ट्रस्टी है यहाँ पे। और ये सारे एजेंसीज के नाम है, आप देख सकते हैं, जिनके द्वारा जो प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अधिकतर यूएन एजेंसीज हैं, और कुछ रीजनल बैंक्स हैं, जैसे एडीबी हो गया और अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक हो गया। और उसके अलावा 3 आप देखेंगे बड़े इंटरनेशनल एनजीओज भी हैं, जैसे WWF यूएस जो अमेरिका में है, WWF वो, और कंजर्वेशन इंटरनेशनल, IUCN। तो ये 3 हैं। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि जो देश में कुछ जो जो जहाँ जिस देश में भी काम होता है वहाँ कुछ वहाँ के जो ऑपरेशनल फोकल पॉइंट होते हैं, तो ये जो होते हैं ये सरकार में जिनको जिम्मेवारी दी जाती है कि आप डील करेंगे GF से या वर्ल्ड बैंक से, तो वैसे लोग होते हैं। ये मिनिस्ट्री में होते हैं, अधिकतर जॉइंट सेक्रेटरी है उसके ऊपर, कई विभाग से। उसके अलावा आप देखेंगे यहाँ प्राइवेट सेक्टर है, यहाँ नॉन प्रॉफिट्स भी हैं। तो यहाँ पे जेफ में एक पूरी बॉडी है जो नॉन प्रॉफिट है, नॉन प्रॉफिट्स को या सिविल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करती है। तो ये ऐसी जगह है जहाँ मुझे लगता है कि पीपल यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकती है, जो संस्था है एज अ मेंबर ऑफ सिविल सोसाइटी। और इसका डिटेल है हमारे वेबसाइट पे कि कैसे इससे जुड़े और कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।
और भारत से भी कई सारे ऐसे सामाजिक संस्थाएं हैं जिनके लोग यहाँ आते हैं और अपने विचार जो हैं जेफ के काम से संबंधित यहाँ शेयर करते हैं। तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर। अब जो अलग अलग थीमेटिक एरिया है वो आपको बता चुका हूँ कि अलग अलग कन्वेंशंस है, तो उससे रिलेटेड ही होगा। तो इंटरनेशनल वाटर है, केमिकल एंड वेस्ट है, बायोडिवर्सिटी है, लैंड डिग्रेडेशन। इसके अलावा अभी जो है सिटीज का प्रोग्राम है जो भागलपुर जैसे शहरों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस सिटी सस्टेनेबल सिटीज प्रोग्राम है एक जीएफ का, और इंडिया में भी कुछ शहर है जहाँ पे ये प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से लेके ट्रांसपोर्टेशन, स्मार्ट सिटीज। इंदौर में है अभी, भोपाल में भी है जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। तो उस पे काम हो रहा है इस प्रोग्राम के थ्रू। और भी दुनिया में बहुत सारे शहर हैं जहाँ पे इस प्रोग्राम के थ्रू काम हो रहा है। उसी तरह कमोडिटीज है, तो कमोडिटीज में जैसे होता है कि सोयाबीन है, बीफ है, कॉफी है, पाम ऑयल है। तो ये सब कमोडिटीज के कारण क्या हो रहा है कि पर्यावरण जो है उसकी क्षति हो रही है, क्योंकि आप जंगल काट देते हैं पाम ऑयल उगाने के लिए। तो वहाँ पे उससे भी संबंधित ऐसे प्रोग्राम्स हैं। और एक और जो प्रोग्राम है वो फूड सिक्योरिटी और लैंड यूज चेंज को लेके है। तो अफ्रीका में बहुत बड़ी समस्या है खाने और खाद्य पदार्थ को लेके और न्यूट्रिशन को लेके। तो ये प्रोग्राम उस पर काम करता है। तो बहुत सारे जो अभी जो प्रोग्राम्स होते हैं वो मिक्स्ड होते हैं, तो उसमें आपको थोड़ा थोड़ा सबका कंपोनेंट रहेगा, क्योंकि जो चीजें जमीन पे काम करती हैं वो ऐसा तो है नहीं कि आप पानी पे काम कर रहे हैं तो बायोडाइवर्सिटी छूट जाएगा या क्लाइमेट छूट जाएगा। तो अब जो है जो प्रोग्रामिंग हो रही है काफी इंटीग्रेटेड हो रही है, और उसमें सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं जो अलग अलग आप देख रहे हैं वो सब मिश्रित तरीके से होते हैं। तो अभी मैं क्या करूंगा कि आपको कुछ उदाहरण दूंगा कि कैसे एक प्रोजेक्ट है वो जेफ जो बहुत हाई लेवल ऑफ गवर्नेंस पे ऑपरेट करता है वो एकदम ग्राउंड पे कैसे आता है। तो उसके लिए मैंने कुछ एक पहला जो प्रोजेक्ट चुना है वो मैंने भारत से चुना है, और ये बहुत अवार्ड विनिंग प्रोजेक्ट है। और अगर आप जानना चाहें इसके बारे में, आप भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं एकदम फ्रीली अवेलेबल हैं। इससे लेसन्स जो हैं, इसका जो डिजाइन है, सारा कुछ अवेलेबल है। तो अगर आप ऐसा कुछ प्रोग्राम पे काम करना चाह रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको अगर उसको पढ़ें और उसको देखें समझें तो उससे अच्छे प्रोग्राम को डिजाइन करने में मदद मिलेगी। तो जैसे ये एक प्रोग्राम है भारत में जो अभी हमारे तरफ से खत्म हो गया, लेकिन सरकार अब इसको चला रही है। वो बहुत बड़ी बात होती है कि आपने किसी चीज की शुरुआत की और उसको फिर जो सरकार है और जो संस्थाएं हैं उसको फिर आगे स्केल अप की जो बात होती है, जो सस्टेनेबिलिटी की बात होती है, उसको सरकार कर लेती है। तो यहाँ पे एक स्लम है, सस्टेनेबल लैंड एंड इकोसिस्टम मैनेजमेंट पार्टनरशिप प्रोग्राम इन इंडिया, और ये बहुत और भी देशों में था, चाइना में भी बहुत पॉपुलर था ये। और तो ये 10 राज्यों में शुरू किया गया और एक यूटी में, और मल्टीपल जेफ एजेंसीज, तो कहीं यूएनडीपी काम कर रहा है, कहीं वर्ल्ड बैंक काम कर रही है, तो ऐसे करके। तो इसमें मेन जो ऑब्जेक्टिव था इसमें यह था कि भाई जमीन जो है उसकी उर्वरकता को बढ़ा दी जाए, और उसके साथ जो इकोसिस्टम है उसको भी रेस्टोर किया जाए। और साथ साथ हमारे देश में पर्यावरण के साथ जो है गरीबी एकदम लिंक है, क्योंकि लोग आश्रित हैं पर्यावरण पर। तो केवल आप पर्यावरण पे काम करें और गरीबों को छोड़ दें तो एक अच्छा मॉडल नहीं है। और जैसे पहले होता था कि प्रोटेक्टेड एरिया, बस उसको उसके किनारे आपने वो प्रोटेक्शन दे दिया, उसको तार से घेर दिया और वहाँ कुछ बंदूकधारी लगा दिए, और जो आदिवासी हैं, जो लोग उस पर आश्रित हैं, उनको भगा दिया। तो वो अच्छा मॉडल नहीं है। इसीलिए ये जो मॉडल है ये दोनों का ख्याल रखती है, ये पर्यावरण के साथ साथ जो गरीबी की समस्या है उसका भी ये ख्याल रखती है। तो इसमें अलग अलग राज्य हैं तो अलग अलग समस्याओं को इसके द्वारा डील किया गया था। तो लेकिन ये जैसे आप देख रहे हैं डायग्राम में कि यहाँ वाटर भी है, लैंड भी है, फॉरेस्ट भी है, क्रॉप्स भी हैं, कैटल्स भी हैं, फूड एंड लाइवलीहुड भी है। और फिर अगर हम थीमेटिक पर्सपेक्टिव से देखें तो इसमें अडेप्टेशन भी है, मिटिगेशन भी है,
और बायोडाइवर्सिटी भी है, लैंड भी है। तो यहाँ जो आप जब सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट करते हैं, जब आप एक अच्छी तरह से जमीन को मैनेज करते हैं, लैंड को मैनेज करते हैं, तो ये सारी चीजों का आपको ख्याल रखना पड़ता है और इससे सारी चीजों में सुधार आता है। हेलो तो सर, हमें आपका स्क्रीन का बस पीपीटी का बस फर्स्ट पेज ही दिख रहा है अभी तक। अरे ऐसा क्या? हाँ हाँ, ओ, अभी दिख रहा है आपको? एक बार दोबारा शेयर करूँ क्या मैं? एक मैं दोबारा शेयर करता हूँ। मैं मैसेज देख नहीं पाया क्योंकि मेरा फुल स्क्रीन। आप बोल इतना अच्छा कर रहे हैं कि सब ठीक है। अभी दिख रहा है आपको? हाँ हाँ सर, अभी आ रहा है, अभी दिख रहा है। सब समझ में आ रहा है। अच्छा, ओके। ओके कंटिन्यू। एक मिनट, मेरा स्टक कर गया यहाँ पे पीपीटी। एक मिनट में, मुझे लगता है एक दो हैवी स्लाइड्स हैं, उनको अभी एक मिनट रिमूव कर देता हूँ मैं। बस एक मिनट। अब दिख रहा है आपको? यस सर, अभी दिख रहा है। ओके, परफेक्ट। तो ये आपने देखा था, इसके बारे में मैं बता रहा था कि स्ट्रक्चर कैसा है। तो यहाँ जैसे इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफिस है, और यहाँ जैसे आपके नॉन प्रॉफिट्स हैं, सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं, और ये जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं यहाँ पे हैं। तो ये स्ट्रक्चर है। और क्विकली ये थीमेटिक एरियाज हैं। तो मैंने बताया कि यहाँ पे थीमेटिक एरियाज में जो कन्वेंशन से डायरेक्टली रिलेटेड हैं, जैसे बायोडाइवर्सिटी है, क्लाइमेट चेंज, वो तो है ही, लेकिन इसके अलावा अब इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स हैं जहाँ पे शहरों पे और अलग अलग कम्युनिटीज पे और फूड सिक्योरिटी जैसे मुद्दों पे काम हो रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, आपको कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा। और यहाँ मैंने ये जो स्लम जो प्रोग्राम है उसके बारे में मैं बता रहा था कि ये सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट पे काम इसका मेन मुख्य उद्देश्य था। और भारत में 10 राज्यों में शुरू हुआ और अब बहुत और भी राज्यों में लागू किया जा रहा है सरकार द्वारा। और तो ये जैसे हम लोग इसको देखते कैसे, एक बार जैसे प्रोग्राम हो गया तो हम लोग जैसे इवैल्यूएशन करते हैं, तो बहुत सारे मेथड्स हैं इसके। डॉक्यूमेंट रिव्यू करते हैं, लोगों का साक्षात्कार करते हैं, इंटरव्यू करते हैं, और कुछ जो आजकल मॉडर्न टेक्निक्स हैं जैसे सैटेलाइट डेटा है, उससे भी देखते हैं कि भाई जमीन पे सही में चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, तो कितना हुआ है।
और फिर जाके उसको वेरीफाई भी करते हैं, लोगों से पूछते हैं कि भाई ये जबरदस्ती तो नहीं हुआ, आपकी इसमें सहभागिता थी कि नहीं थी। तो ऐसे जो सवाल हैं और इसकी जानकारी तो हमको किसी से बात कर, जो बेनिफिशियरी हैं उनसे बात करने से मिल सकती है। तो ये सब हम करते हैं। तो ये जो प्रोग्राम था, ये जैसे आपको मध्य प्रदेश में जो नेचुरल बांस हैं उस पे था मध्य प्रदेश में। उसी तरह उत्तराखंड में वाटरशेड पे था ये। तो वाटरशेड में पानी को कैसे कंजर्व किया जाए उस पे था ये। और उत्तराखंड के बहुत सारे माइक्रो वाटरशेड में ये किया गया और अब जो है पूरे राज्य में ये लागू किया जा रहा है यही मॉडल। और नागालैंड में जो वहाँ पे जो जूम से खेती होती है, जैसे खेतों को जला दिया जाता है, फिर उस पर कुछ उगाया जाता है, फिर दूसरी जगह जाके जला के, तो ये बहुत पुराना उनका ट्रेडिशन है। तो इसको सस्टेनेबल तरीके से कैसे किया जाए, जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है। तो ये जैसे 3 राज्यों का मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, और भी राज्य जैसे हरियाणा और राजस्थान में इसी तरीके का इससे सिमिलर इंटरवेंशन था। और तो इसमें क्या, जैसे आप देखेंगे बहुत डिवर्सिटी, अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट हैं, लेकिन इसमें जो था जो मुख्य बात ये थी कि जिस तरीके का परिवेश है उसी के हिसाब से प्रोग्राम बनाया गया था। अगर आप जो नागालैंड वाला मॉडल है मध्य प्रदेश में लगा देंगे तो वो काम नहीं करेगा। तो इसी कारण ये जो प्रोग्राम था काफी उससे काफी कुछ सीखने के लिए था, क्योंकि जैसा परिवेश है उसी के हिसाब से इसको डेवलप किया गया था। और दूसरा क्या है कि पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट पे बहुत ज्यादा इसमें फोकस था। तो पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट में है कि जो लोग हैं जो यहाँ पे आदिवासी थे, उन लोगों को उन लोगों की सहभागिता जो है वो एकदम इंश्योर की गई कि भाई वो एकदम इसमें सहभागी रहें और बराबर के हिस्सेदार रहें। और उसके कारण जो है ये प्रोजेक्ट बहुत ही सक्सेसफुल रहा कि वो लोग जो हैं अपने जो बांस, उनको लैंड का टाइटल दे दिया गया। तो कानून में कुछ परिवर्तन किए गए 2 राज्यों के, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में। और उसके कारण क्या हुआ कि जो जमीन जिसको रिस्टोर करना था, जो बैम्बू फॉरेस्ट था या जो वाटरशेड था, उसमें इनको लैंड टाइटल दे दिए गए कि भाई आपकी जमीन है। पहले जो था कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, अगर आप जाए, कोई आदिवासी जाए जंगल में तो उसको पकड़ लेंगे, फाइन कर देंगे, लेकिन अब हुआ कि भाई ये आपका है, आप इसको डेवलप करें और आप बांस जो हो रहा है 4 साल में आप बेच सकते हैं। तो उससे उनको इनकम भी मिल रहा है, जब तक प्रोजेक्ट चल रहा है तो उनको आप पैसे दे रहे हैं कि वो रेस्टोर करें, और बाद में उनको लॉन्ग टर्म आपने टाइटल दे दिया तो अब वो बांस का ख्याल भी रखेंगे और उससे जो आमदनी होगी उनसे उनसे उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। तो ये जो सहभागिता थी ये बहुत ही इसका अहम वहाँ पे रोल था। तो उत्तराखंड में भी था, वन पंचायत के थ्रू काम हुआ। तो जहाँ पे जंगल में जाना अलाउड था, लेकिन जंगल में आप जैसे घास काट के ला सकते हैं, पौधों को जैसे कि झाड़ियाँ ला सकते हैं, मतलब पूरा पेड़ नहीं काट सकते आप, लेकिन झाड़ियाँ ला सकते हैं, और ये गवर्नमेंट फॉरेस्ट है, ठीक है। तो ये सारा जो है थोड़ा कानून में थोड़ा सा संशोधन करके लोगों की सहभागिता जो है वो बढ़ गई उससे। और नागालैंड में भी ऐसा ही कुछ था, वहाँ भी जो लोग हैं उनकी जो पार्टिसिपेशन है उसको इंश्योर किया गया। तो मैं साथ साथ बताते जा रहा हूँ कि क्या प्रोजेक्ट ने क्या किया और कैसे काम अच्छा हुआ, क्योंकि ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एक प्रोजेक्ट का। और तो उसी तरह इसके कारण आपको दोनों दिखे, आपको इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स भी दिखे। जैसे उत्तराखंड में जो वाटरशेड में आग की जो फ्रिक्वेंसी थी वो कम हो गई, और तो आग की फ्रिक्वेंसी कम हो गई इसके कारण। और उसी तरह आपको बैम्बू का जो फॉरेस्ट है बांस का, उसका रेस्टोरेशन भी हो गया। कई सारी महिलाओं को इसके कारण जो जीविका है वो मिली। जैसे आप ये देख सकते हैं मध्य प्रदेश में जो महिलाएं हैं ये अगरबत्ती बना रही हैं। और तो इसके कारण क्या हुआ कि स्केल अप हो गया ये जो है पूरे मध्य प्रदेश में, नागालैंड में और उत्तराखंड में। ये मॉडल अभी पूरे राज्य स्तर पे हो रहा है।
दूसरा जो यहाँ इम्पोर्टेंट था और मुझे लगता है पीपल जैसी संस्था के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मार्केट एक्सेस। जैसे आप कुछ भी बना लें लोकल लेवल पे, अगरबत्ती बना लें, साबुन बना लें, लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, मार्केट का एक्सेस नहीं होगा, तो फिर वो जो है प्रोडक्ट आपके घर पे ही रह जाएंगे, आपके जो शॉप्स हैं उसमें ही रह जाएंगे। तो ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट जो कड़ी थी, इसको भी यहाँ पे इसको भी यहाँ पे फोकस में रखा गया और इसको यहाँ पे टैकल किया गया। अब यहाँ परेशानी कहाँ आई, मतलब क्या इससे सीखने को है? ये तो अच्छी बातें थी जो सीखने के लिए हैं। ये भी सीखने की थी कि जैसे क्लाइमेट रेजिलियंस की बात होती है, तो यहाँ पे रेजिलियंस के मामले में थोड़ी कमी हो गई। और जैसे ये बांस का है जंगल, और इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी एक साल कि आप 5 साल तक मेहनत करते हैं बांस को मैच्योर करने में, और 2 वीक इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी कि ये सारे बांस सूख गए। ये सभी एरिया में नहीं हुआ, कुछ-कुछ एरिया में हुआ। और तो यहाँ पे है कि भाई अगर आपको क्लाइमेट इन्फॉर्मेशन रहता और अगर आपको बताया जाता उसको कैसे यूज करें, तो वो ये परेशानी कम हो सकती थी। जैसे आप पानी का पहले से ही इंतजाम करके रखते, अगर आपको पता है कि भाई क्लाइमेट चेंज के कारण टेम्परेचर अचानक बढ़ने वाला है, तो ये कमी हो गई। उसी तरह उत्तराखंड में ये बहुत ही बढ़िया एक प्रोजेक्ट साइट था जहाँ पे जो किसान हैं वो लोग जैसे आप देख रहे हैं कि जो पत्ता गोभी उन्होंने उगाया हुआ है और ये पूरे स्लोप पे, और अचानक एक दिन हेल स्टॉर्म आया और ये सारी जो फसल है वो बेकार हो गई। तो अगर इनको पहले पता होता, और जो आजकल क्लाइमेट डेटा है या जो वेदर डेटा जो मिल जाता है आपको बहुत ही आसानी से, उसका अगर आप प्रोजेक्ट से इंटीग्रेट कर देते उसको अच्छी तरह से, तो आप शायद ऐसा खुले में नहीं रखते इसको, आप ग्रीन हाउस के अंदर रखते। तो ये थोड़ी कमी थी कि जो क्लाइमेट कंसिडरेशंस थे वो यहाँ पे नहीं किया गया। तो ये एक तरह की कमी थी, और बाकी हर साइड पे कुछ ना कुछ और छोटी मोटी बातें थी जो सीखने के लिए थी। तो ये ओवरऑल आपको मैंने एक डेमोन्स्ट्रेट किया कि ग्लोबल लेवल जो कन्वेंशन है लैंड डिग्रेडेशन, बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट, ये आके जमीन पे कैसे इनको इम्प्लीमेंट किया गया और इससे क्या सीखने को मिला। और उसी तरह अब मैं आपको एक दूसरा जल्दी से एग्जांपल दूंगा, और ये रिकमेंडेशन आप देख सकते हैं, बहुत हाई लेवल रिकमेंडेशन है ये सारे इस प्रोजेक्ट के द्वारा जो हमको मिले हैं, कि आप सारे प्रोजेक्ट्स कोई भी, अब केवल भारत से ही नहीं, जो भी आपको प्रोजेक्ट इस तरह के आए उसमें आप क्लाइमेट रिस्क एसेस करें। उसके बिना आप उसको क्लियर नहीं करें, उसको फंड नहीं करें जब तक ये क्लाइमेट रिस्क उसमें नहीं उसको मिटिगेट किया गया है। तो इसी तरह जो है बाकी सारे जो रिकमेंडेशन आप देखेंगे बहुत स्ट्रैटेजिक लेवल पे, क्योंकि इससे हमको सीख जो मिलती है वो बहुत ही ऊपर के लेवल पे, हायर लेवल पे हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और लेकिन ये सीख जो इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए भी है। उसी तरह इंटरनेशनल वाटर, क्योंकि अब भागलपुर की बात हो रही थी, मैं सोचा चंपा नदी है जिस पे आप लोग बहुत काम कर रहे हैं, तो उससे मिला जुला एक हेलो उससे We मिला can जुला hear एक you. एग्जांपल दूं, और इसके बाद मैं बस ये लास्ट एग्जांपल होगा, उसके बाद रैप अप कर दूंगा, थोड़ा हम लोग लेट चल रहे हैं। तो ये जैसे लेक विक्टोरिया जो है बहुत बड़ा लेक है अफ्रीका के बीच में, तो वहाँ ये वाटर हाइसिंथ जो है, जो जल कुंभी की जो परेशानी है बहुत ज्यादा हो गई थी, और तो उसको डील करने के लिए आप देख सकते हैं मैनुअल रिमूवल हो रहा है यहाँ पे, मैकेनिकल रिमूवल भी हो रहा है, फिर बायो रिमेडियल्स भी हो रहे थे कि जो कुछ वीडीसाइड कोई केमिकल डाल दें और उससे भी ये मर जाते हैं, तो ये चल रहा था। और तो इसमें ये देखा गया, और जैसे ये अब आपको थोड़ा डेटा की तरफ ले जाते हैं, और ये बहुत मुश्किल नहीं है, आप लोग भी, चंपा नदी है या और भी इस टाइप की कोई जगह है तो यहाँ आप लोग लगा सकते हैं इस टाइप के जो मेथड्स हैं, इनोवेटिव मेथड, देखने के लिए कि कैसे चीजें बदलती हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा यहाँ पे कि 3 प्रोजेक्ट्स ऑलमोस्ट बैक टू बैक, एक के बाद एक, ये 3 आपको यहाँ लाने पड़े, जिससे जो जल कुंभी का की जो मात्रा है वो कम हो गई। लेकिन आप अगर सोचे कि आप 2 साल 3 साल 4 साल काम करेंगे, इतने बड़े जो परेशानी है, इतना बड़ा प्रॉब्लम है, उससे हल हो जाएगा, तो उससे नहीं होगा।
कई बार क्या होता है कि जो इस टाइप की समस्याएं होती हैं वो बहुत लॉन्ग टर्म आपका कंट्रीब्यूशन और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहती हैं। और आप देखिए, आप जैसे ये जो पीला जो आपको दिख रहा है वो आपको वो जलकुंभी है, और धीरे धीरे देखेंगे आप 2007 में एकदम बढ़ गया है, और कौन अब नहीं जब लेना है? देखेंगे 2016 में, तो आप देखेंगे काफी उसकी मात्रा जो है वो कम हो गई है। तो उसी तरह और भी मेरे पास एग्जाम्पल्स है, लेकिन अब ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा और यहीं पे इसको एंड करूँगा, और आपके कुछ सवाल हैं तो मैं उनका उत्तर दे दूँगा। हेलो। Yes, sir. So I am done, but I am open to questions if we have time, or we can move to the next presentation. I think we will open it for discussion now Okay. before we move on to the next speaker. Anybody has a question? Is a question from anyone? Okay, Anupam, I have a question. Sure. When you said about these collaborations, you also showed that there is this presence of NGOs somewhere. I mean, how do you engage these organizations? How are they engaged? So the organizations are engaged at various levels. So at a higher level, at a highest level of decision making, there's a body and there's a place for the civil society. And this is not only for the JEF. This is for all the conventions. Even in the convention, when you go to the COP, the Conference of Parties, which is the biggest decision making meeting, there also there's a place for civil society, and they can raise their concerns and give their suggestions. And there is a procedure to be part of it. And for instance, if you want to be part of the JEF civil society organizations, then there's a landing page on the website, and there there's a form, and it has certain requirements, and you need to get endorsement from the ministry. But it's relatively very easy. Actually, the process is very easy, and then you get into the discussions. So anytime the JEF Council meets, you will get all the documents, and you'll get an opportunity, and you'll get the floor to comment on them. And there are always some representatives. And if you want to watch that, it's all freely available and available on the YouTube. So you can, if you are interested in seeing that in action, that how does it happen, and what are the concerns the civil society raises, and how do they raise it. So it's all recorded. So I will highly recommend, I will share the link. You can see how do they interject, and and how do they interact with the council. And this is true for all the international forums. And so this is one. At the ground level, as I told you that the JEF or many of these international organizations, they directly engage with the country government, and of course through the implementing agencies. However, there are executing agencies that many times could be local NGOs, could be national NGOs. So that's the other way of engaging. For that, you have to liaison and you have to work with the implementing agencies and the government. So when the projects are designed and conceived, that is the time when these discussions take place. And so that's the other way. So one is at a higher level of decision making, and the other one is in implementing. So you are executing the projects on together with or on behalf of the government and the
and the implementing agencies. Can I ask a question as well? Sure. अनुपम, आपने बताया वो मार्केट एक्सेस के बारे में, वो प्राइवेट पार्टिसिपेशन, मार्केट एक्सेस. So you know this. I mean, there's always a challenge, especially if you're working with वो products पे काम कर रहे हैं, जो थोड़ा selfish reason से पूछ रहा हूँ मैं वो, क्योंकि वो हमारा project का भी challenge रहा है. And if you stay on for the presentation, then probably you will know the context in which I'm asking this question. So वो market access पे really, do you get involved in facilitating this private participation for your ongoing projects? Do you like sort of facilitate in any way, or do you suggest? So there's a private sector strategy that is now being debated, and I think it will be approved next council. So that's at the higher level. That how do you engage private sector, because many times they use a lot of these natural resources. At the same time, without their participation, you cannot deal with the environmental problems. So that's one. But market access is more specific to the projects on the ground, that you are making some products or you are providing alternate livelihood to people on the ground. Like they are dependent on, for instance, they are dependent on the forest or the water or the land. Now, you are telling them, hey, I mean, you don't want to degrade the forest, but we will, we'll do some skill training, and so when you do the skill training, now they're making some tertiary products or, some product. And I mean, once you make the product, you have to figure out where the market, and you have to, absolutely. You have to link it to the market. And that's quite a challenge. I will tell you, in our evaluation work, we have seen that's quite a challenge for various reasons. I mean, I can tell you example from India, Gulf of Mannar, where these are fishermen, and you're telling them, okay, don't go and fish in the protected area, this area of high biodiversity. So and this is Tamil Nadu, so you're teaching them how to grow these jasmine flowers. These are fishers, fisher women mostly. And goat rearing. I mean, आप किसी मछुआरे को बोलो कि बकरी वो करे, that's not gonna work. But आपने jasmine कर दिया, या बाद में पता लगा हमें मिड प्रोजेक्ट में कि भाई ये हो रहा है, तो हमने बोला कि नहीं, ये तो आप बकरी is not a good idea, probably जो seashells के समान होते हैं, जैसे शंख है, इन सब चीजों का आप कुछ बना लें, तो उसमें वो एक्सपर्ट्स हैं. तो अब उन्होंने बना तो लिया, लेकिन आप जाके देखेंगे वो पड़े हुए हैं उनके जो कम्युनिटी सेंटर है कि भाई कोई खरीद नहीं रहा है, हम बेच नहीं पा रहे हैं. ठीक है, हम गवर्नमेंट के इस फेयर में उस फेयर में जाते हैं, या कोई लोकल जो फेयर्स होते हैं, बट वहीं तक लिमिटेड है. मतलब हमको बड़ा मार्केट कैसे मिले. तो फिर उसके बाद जो कोऑपरेटिव्स होते हैं, ऐसे करके, तो देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ लर्निंग, बट नाउ इट्स कमिंग इनटू प्लेस. जैसे कोलंबिया में मेरे पास एक एग्जांपल था, तो कॉफी फेडरेशन के साथ डायरेक्टली काम करना शुरू कर दिया कि जो हम सस्टेनेबल कॉफी उगा रहे हैं, अब एक फार्मर इंडिविजुअली तो उसको बेच ही नहीं सकता, एक तो महंगा होता है वो. तो उसके बाद वहां पे क्या काम किया कि कॉफी जो फेडरेशन है उनको हम ऑन बोर्ड लेके आए, और शुरू में वो बहुत स्केप्टिकल थे कि भाई हमारा खर्चा बढ़ जाएगा सस्टेनेबल कॉफी उगाने में एंड ऑल दैट. बट धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस गेन किया, बताया कि भाई एक तो आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे सर्टिफिकेशन के कारण, दूसरा क्लाइमेट चेंज, एक बार वहाँ बहुत बड़ा इन्फेक्शन हो गया, तो उनको भी लगा हाँ ये बात तो सही है, मोनोकल्चर हम कर रहे हैं. अब तो हमारे कॉफी एक ऐसा सीजन आया कि सारे कॉफी उनके अफेक्टेड हो गए, और शेडेड जो कॉफी थे, कुछ फार्मर्स जो थोड़े क्रांतिकारी जैसे थे, उन्होंने कर लिया था, उनके अफेक्टेड नहीं हुए. तो फिर ऐसे करके धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ. बट प्राइवेट सेक्टर जो है काफी, मैं कहूँगा कि काफी फ्रेगमेंटेड है उनके, क्योंकि काफी स्पेसिफिक होता है. अब जैसे बिहार में कोई प्रोजेक्ट है, आप खोजिए अब प्राइवेट सेक्टर, आपको कहीं लखनऊ और दिल्ली से पकड़ना पड़ेगा आप, तो वो अभी चैलेंज है बहुत बड़ा. बहुत चैलेंज है इंडिया में बिजनेस करना, बहुत चैलेंज है. मतलब आप दुखती रग पे हाथ छेड़ दीजिएगा.
नहीं नहीं बहुत चैलेंजेस है, लेकिन उसका ठीक है, मतलब नहीं, मतलब आई वाजंट, मेरा कोई मतलब डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं था ये, क्योंकि थोड़ा पता है मुझे भी कि परेशानी तो है, और कोई भी बाहर से आके आप हर चीज पे ध्यान दे नहीं सकते हैं कि एक जगह आप कि मार्केट एक्सेस भी दे दीजिएगा, उनको प्रोडक्ट बना भी दे दीजिएगा, उसका पैसा सपोर्ट भी दे दीजिएगा, वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए मुझे लगा कि वो फैसिलिटेशन का ही रोल आपका रहता होगा। नहीं, ये जो है ना, ये कंट्री ड्रिवन ही होता है बहुत, ये कंट्री हमारे लेवल पे क्या है, वही हो भी सकता है, उसके अलावा ये आप कर भी स्ट्रैटेजी, नहीं सकते हैं। हाँ, हमें पता है कि प्राइवेट सेक्टर इंपॉर्टेंट, हम पूछ सकते हैं कि भाई आपने उसको एड्रेस किया कि नहीं। करेक्ट करेक्ट, और आपके लोकल इन्वॉल्वमेंट से कॉन्टेक्स्ट है, लोग, जी, लोकल कॉन्टेक्स्ट हमको नहीं पता, आपको पता है। हम यहाँ से कुछ मैंने प्रोजेक्ट जैसे विजिट किए हैं तो मुझे थोड़ा ज्यादा पता हो गया, लेकिन अब 10 दिन के विजिट में क्या पता होगा। सही बात ठीक है। है, आपके जैसे एक्सपर्ट्स हैं या और भी जो वहाँ पे एक्सपर्ट्स हैं, उनसे मेरी भी उनको एक्सपर्टीज तो एक ही बताते हैं। प्रोजेक्ट की होगी ना, आपका तो डाइवर्स एक्सपीरियंस है, मेरी राइट एक्सपर्टीज तो सिर्फ मेरे प्रोजेक्ट की होगी या मेरे। राइट, तो दोनों का फायदा है। जैसे लोकल कॉन्टेक्स्ट में आपका ज्यादा वैल्यूएबल है, लेकिन हम आते हैं तो आप जैसे लोगों से सीखते हैं कि हम पूछते हैं कि भाई यहाँ तो हम, मुझे ही किसी और ने बताया भाई ये बकरी हमको दे रहे हैं, हम तो बकरी खाते हैं ना, हम पाला जानते हैं, तो वहां से मुझे पता लगा। तो कहीं और ऐसा कुछ हो रहा है तो मैं बता सकता हूँ कि भाई ये लोकल है क्या, मतलब आप लोग पहले ट्रेडिशनली ऐसा करते थे क्या। जैसे कीनिया में गया तो वहाँ पूछा मैंने, तो उन्होंने बताया वहाँ गधा पाल रहे हैं क्योंकि अब चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स हैं वहाँ पे, तो वो डोंकीज को लोकल नहीं चाहते हैं, डोंकीज, दे डोंट ईट डोंकीज, बट वो डोंकी का मीट एक्सपोर्ट हो जाता है वहां से, उनको नौकरी मिल जाती है, तो वो मन नहीं चाहते हुए भी कर रहे हैं काम वहां पे। तो ये आपके ना सारी चीजें ये इस हर एक प्रोजेक्ट पे ना एक एग्जांपल है मेरे पास, जैसे वो आप बकरी वाला आप बोले हैं, भागलपुर में शीप रेयरिंग होता है, भागलपुर के पास में जाइएगा ना, वहां पे ऊन बनता है, लेकिन वो ऊन का क्वालिटी इतना खराब है, क्योंकि वो उनसे फायदा नहीं होता उनको। वो बकरी जब पालते हैं ना, तो दे कैन सेल इट फॉर द मीट, तो उससे ज्यादा पैसा आता है। तो ऊन जो है वो फ्री में डाल देते हैं। तो वहां पे आपको एक मैं लिंक भेजूंगा, आई हैव रिटन एन आर्टिकल ऑन दिस, कि उसमें जो एकदम प्रिमिटिव लूम का मतलब 2000 साल पुराना लूम होगा वो, कम से कम एटलीस्ट टेक्नोलॉजी उसकी, और उस लूम पे वो कारपेट्स बनाते हैं, वुलन कारपेट, एंड यू विल नॉट बिलीव वो डाई इतना अच्छा पकड़ता है कि मैंने कहा इसको तो नॉर्थ फेस को बेच देंगे अगर, तो वो आउटडोर ब्लैंकेट्स बना के भेजेगा। But obviously scale नहीं है, and I didn't want to lose my focus, so I continued doing what I do. But वो एक है। फिर आप जो बता रहे हैं चेन्नई का एग्जाम्पल, 96-97 में I worked on a BBC documentary. I was a location manager. तो लोकेशन मैनेजर मतलब कि मुझे स्काउट करना था वो जगह, तो मैं काफी सारा गांव घूमा था। तो उस गांव में एक आंध्र प्रदेश में एक गांव था जहाँ पे फिशिंग विलेज, तो वो फिल्म भी है, मैं आपको लिंक भेजूंगा वो भी, और ये फिल्म उसमें क्रेडिट भी मिला है मुझे, छोटा सा कि मैं लोकेशन मैनेजर था ऐसा। तो उस फिल्म में ट्रोलिंग का प्रॉब्लम था कि ट्रॉलर्स बहुत आ गए थे, प्रॉन्स कर रहे थे लोग, बट अगेन सेम इश्यूज कि उसको कैसे कुछ और काम कैसे बोल दीजिएगा करने को। मतलब वो बेचारा मछली पकड़ रहा है पूरे जीवन भर, उसके दादा परदादा सब मछली पकड़ रहे हैं, उसको अचानक आप बोलिएगा कि आप फलाना करो। तो आई टोटली एग्री विथ यू, इट्स नॉट इजी। और मैं तो हम्बल हो गया हूँ मेरे छोटे से एक्सपीरियंस के बाद। मेरा तो बहुत ही, रानी तो ब्रेव है, मतलब शी इज अ ब्रेव हार्ट, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कर रही है तो ब्रेव हार्ट है, बट मेरा तो काफी हम्बलिंग एक्सपीरियंस हुआ, which is what I detected in your voice as well, despite your knowledge and breadth of your wonderful presentation. I could hear the underpinnings of humility ki bhai, matlab, we are trying our best, but this is what we do, and that's what impressed me, to be honest, because अगर एकदम से मेरा तो बड़ा humbling experience रहा है, मैं मतलब I am नहीं, humbling इसलिए है ना, I just want to end this here. Humbling इसलिए, the more you know, the more humble you become. That's Because true. the more you know, That's the a more thing you of know it. that how less you know. There's so much. So I think knowledge humbles you. Well, I mean, in your case, maybe, but in my case, it's more the real life experiences, in the sense that, look, maybe my arrogance has been tempered, so that's. Okay, Anupam. Yeah.
I wanted to know regarding the market access thing that you mentioned, do you also have these learnings documented somewhere? Especially for the things that failed, you know, because that learning उससे आता है कि क्या क्या चीजें fail की उसको भी document करना और जो work की. I mean, is this somewhere it is documented and can that be shared? Yeah, so there are a lot of documents actually. So the question is, where do you want to start? So all the evaluations have these. So wherever there's a market access problem or private sector issues, and then there are specific evaluations where you only read about what are the challenges with private sector, which area they are doing better. Like in climate space, they are doing better because renewables and solar panel bana dena wo thoda easy rehta hai. But if you want to work with indigenous people, private sector दूर दूर तक नहीं दिखता वहाँ पे. So there's a range of activities and themes. So I think I will Are not degraded or it's not cut. They ensure that. So this is a strategy that we are picking, and maybe we could get some learnings from you as well. Yeah, I'll share these examples, and I think Gramya, the Uttarakhand, is a big hit. I mean, even in the convention. So last year, India hosted the UN Convention on Land Degradation, and this was highlighted so much. This particular project, it started with 29 micro watersheds, and now it's a state policy, and there's a huge office in Dehradun that I visited, and they're doing it in all the districts. So it's become a model for the state to follow. What is it called? It's called Gramya. Okay. Gram is Gaon, and Mya is probably a Sanskrit. All right. And this was with the government of Uttarakhand, or was it with some UN agency? So this is World Bank, but you know how World Bank works. World Bank with the government. Yeah, with the government. I mean, it's all government driven. So some other agencies they actually implement on the ground, but World Bank is all. I mean, the PMU. But is it the state government or the ministry? The state government. State government. State government, but you know, you have a chairman and MD who is a IS officer, senior IS officer. Yeah. Then you have a deputy who is from the forest department, and then there's someone from the agriculture department. I mean, there's so much to learn about from this project. How different line ministries are working together, because this, I mean, watershed, you cannot deal with watershed just with the revenue or or agriculture for that matter. So all of them have to come together, and this project has done that, and it has gone beyond that. And actually, coming out of this project, they have the government committed to establish a center for excellence for training people from all the UNCCD countries. So it will become a global hub of knowledge. So it's being established in Dehradun. Yeah. Finally, before I close, I had something in mind, and my daughter came, and I forgot that. I'll hang around till I hear Amitabh Bhaiya. Yeah. Okay. And all so right. If it comes Just back to trying to, what was the thing that came into my mind, and I asked. Anupam, it's such a coincidence. It just struck me. There is a packet lying here with the stars here, and it's going to somebody who works with World Bank. Oh, really? What's his name? His name is Samir Shukla.
Okay. Sameer's brother is well. They are both my friends, Mhm. but Sameer's brother is Saket, who's my friend, and he's one of the investors in the project. Investor क्या है मतलब पैसा उसका छीन लिया हूँ मैं. Okay. इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट क्या होगा, but you know. Mhm. So Sameer Sameer, Shukla, वो yeah, that's good to know. He's in energy. He's a practice correct, manager. correct. Energy, correct. Very nice guy. If you haven't met him, Yeah, you should. Very very nice guy. technical. Yeah. If you want, I can drop him a line. You know, very nice guy. He'll be, you know, I'll be happy to. Very sweet chap. We know each other since we were, I don't know, 1 or 2. You know, so. Wow. बहुत, Okay, Anupam, finally, before closing this, you remember the question? what do you have for Bihar? Do you have anything for Bihar? Anything planned in future? Because you said you have some other states coming in. So does Bihar feature anywhere? I mean, there's Good a. question. I can say from World Bank perspective, although I mean I'm not involved in that, but you know there's a big project that you can look into, and you might know already. Jivika, have you heard of the Jivika project? I know Jivika. It's the National Rural Development Program. Yes. So Jivika is funded by the World Bank. I mean, so All right. that's one. But also there are some climate smart agriculture projects that are implemented. That's close to where I work. So there are some pilots, and that they're using some climate information system, and this all nationally developed. You know, there's a private sector company, you know, Cropin. So this like I know startup. cropping. Yeah. So they are involved and they are providing some weather data, and that is being used for agricultural decision making. So it's being piloted in Bihar. And so, I mean, this is close, but overall, I mean, you know, it's a very philosophical question. So, and my answer is I'm available for Bihar. If, you know, if there is any need, or if you need any guidance or advisory, you know, I'm very happy to help in my personal capacity. You should But come to also guide Bhagalpur once, Anupam. where I could guide. I'm very happy to do that. You should come to Bhagalpur. I'll once. definitely get back to you, Anupam, 100%. That you can bank on me. I'm coming back to you for all the advisories and help. No, definitely, Okay. yeah. So thank you for joining us today and for for helping us get more understanding about how international policies link up to the local actions. And yes, but we will be more interested to learn more about how it is working in Bihar, and we'll get back for more. We'll be holding more such sessions, more knowledge sessions, and we'll be kind of getting sharper and sharper to how things relate to our work on the ground. So with this, I